السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ایک نواب کی پر اسرار تلسماتی دنیا کی آپ بیتی ایپیسوڈ نمبر 128 128۔ تجمل مجھے سائرہ کی باتیں سنا رہا تھا تو میرا سینہ جذبات کی شدت سے تھرکنے لگا۔ میں اتنا ہی جانتا تھا کہ سائرہ کے دل میں میری اتنی زیادہ محبت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن میں نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے معاملے میں وہ اتنی زیادہ جذباتی ہو جائے گی کہ اس کا ذہن اب نارمل ہو جائے گا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ عجوب جیسے آدمیوں کی بہنیں عموماً شریف نہیں ہوا کرتی۔ اس کے علاوہ سائرہ پر جو گزری تھی اس کا رد عمل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جس کا اظہار وہ کر رہی تھی۔ لوگوں نے اسے بدنام کر دیا تھا۔ کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جو لڑکی اغوا ہو کر گئی اور اتنے دن غیروں میں گزار کر آئی ہے وہ پاک صاف ہوگی۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نیت کا پھل دیتا ہے۔ سائرہ نے ہمیشہ اپنی نیت صاف رکھی اور دھیان خدا کی ذات میں رکھا۔ خدا نے اسے اس کا یہ اجر دیا کہ وہ اغوا ہوئی تو خدا نے میرے دل میں رحم ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی اور میں اس کی عصمت کا محافظ بن گیا۔ میں نے تجمل سے کہا کہ وہ بختے کو بلائے۔ بختہ آیا تو میں نے اس نے وہ باتیں پھر سنی جو تجمل مجھے سنا چکا تھا۔ میں نے تھانے داروں کی طرح کئی سوال پوچھے اور اس طرح وہ باتیں بھی مجھے معلوم ہوئیں جو بختے نے تجمل کو نہیں سنائی تھیں۔ یہ باتیں سن کر میں تڑپ اٹھا اور اس طرف سے اس ارادے نے سر اٹھایا کہ میں سائرہ سے ملنے جاؤں گا۔ میں نے اس کے پاس ہمیشہ کے لیے چلے جانے کا یا اس کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ میں اس کے ساتھ رہ سکتا ہی نہیں تھا۔ میں اسے نارمل حالت میں لا کر کسی کے ساتھ شادی کر لینے پر آمادہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تجمل اور منور کو اپنا ارادہ بتایا اور کہا کہ میں ابھی جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس اطمینان کا اظہار کیا کہ اس حلیے میں مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا، لیکن انہوں نے مجھے اسی وقت جانے کی اجازت نہ دی۔ کہتے تھے کہ میں کم از کم ایک رات ان کے ساتھ گزاروں۔ میں خود چاہتا تھا کہ اتنے دن اتنے پیارے دوستوں کے پاس کچھ اور وقت گزرے۔ میں رک گیا۔ انہوں نے مجھے نہلایا دلہایا اور میری خاطر تواضع حد سے بڑھ کر کی۔ پوری رات باتیں کرتے گزر گئی۔ صبح منہ اندھیرے میں پھر اسی بہروپ میں اپنے شہر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ تجمل اور منور مجھے اپنی گھوڑی دے رہے تھے جو میں نے قبول نہ کی۔ میں جس حلیے میں تھا اس حلیے جیسے مفلس دیہاتی اتنی اچھی نسل کی گھوڑیوں پر سوار نہیں ہوا کرتے۔ اگر میں ایسی گھوڑی پر سوار ہوتا تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا اور پکڑا جاتا۔ میرے لیے پیدل چلنا ہی محفوظ اور بہتر تھا۔ میں نے اس گاؤں سے اس شہر تک گھوڑی پر سفر کیا تھا۔ اتنا لمبا سفر گھوڑے پر ہی کیا جا سکتا تھا، لیکن اب میں اپنی مجبوری کے تحت پیدل جا رہا تھا۔ یہ علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا۔ اگر سائرہ کی کشش نہ ہوتی تو میں اتنا زیادہ نہ چل سکتا۔ گزشتہ روز بھی میں نے خاصا لمبا پیدل سفر کیا تھا، لیکن اب میری ٹانگوں میں گزشتہ روز سے زیادہ طاقت آ گئی۔ میرے ذہن پر سائرہ سوار تھی۔ سورج سر پر آ گیا تو میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور وہ کھانا کھول کر کھانے لگا جو منور اور تجمل نے میرے سفر کے لیے خاص طور پر پکوایا تھا۔ کھانا کھا کر مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں ساری رات کا جاگا ہوا اور گزشتہ رات کا تھکا ہوا تھا۔ ذرا سستانے کے لیے میں وہاں لیٹ گیا اور فوراً ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں سائرہ کو اور اپنی امی کو دیکھا۔ دونوں اکٹھی کھڑی تھیں اور مجھے بازو پھیلا کر بلا رہی تھی، لیکن میں ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ میرے اور ان کے درمیان ایک ندی حائل تھی جس میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ میں ندی کے اس کنارے پر ادھر ادھر دوڑتا پھر رہا تھا کہ ندی میں کہیں سے ایسی جگہ نظر آ جائے جہاں سے میں ندی پار کر لوں، لیکن میں جس جگہ بھی رکتا اور ندی میں اترنے لگتا وہاں سے لہریں اٹھتیں اور میری طرف لپکنے لگتیں اور میں پیچھے ہٹ جاتا۔ میں آخر ندی میں کود گیا اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں گھبرایا ہوا اٹھا۔ ذہن پر ابھی تک خواب کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں عالم خواب میں تھا۔ میں اٹھا اور چل پڑا۔ مجھے ہر لمحہ یہ احساس رہا
کہ मेरी अम्मी और सायरा मेरे करीब ही कहीं मौजूद हैं या मेरे साथ चल रही हैं। आपने मेरी उस दास्तान में देखा होगा कि जब कभी सायरा मेरे तस्वर में आती तो उस तस्वर में मेरी अम्मी का आना लाजमी होता था। मैंने इस तहरीर में अपनी अम्मी और सायरा की वाबस्तगी वाज़े की थी, जो मुख्तसर ये है कि सायरा के होंठ, आंखें, मुस्कुराहट और चेहरे का तासुर मेरी अम्मी जैसा था। इन तफसीलात को छोड़ें, मुख्तसर बात यह है कि सायरा एक मकनातीस थी और मैं लोहे का कमज़ोर सा ज़र्रा जो मजबूर और बेबस होकर उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। दिन का पिछला पहर था जब मैं उस बुलंद ज़मीन तक पहुंच चुका था जहां से मुझे अपना सारा शहर नज़र आ रहा था। मेरी रफ्तार और तेज़ हो गई, थकन का एहसास मिट गया। मेरे करीब से लोग गुजरते रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें देखने की और अपने आप को उनसे छुपाए रखने की ज़रूरत महसूस ना की। मैं कुछ देर के लिए भूल गया था कि मैं 10-10 हज़ार रुपये की मालियत का मफरूर मुल्ज़म हूँ और फ़ौरन पहचाना जा सकता हूँ। मैं अहमकाना हद तक बेखौफ व खतर चला जा रहा था। मैंने ये भी ना सोचा कि मैंने जो बहरूप धार रखा था उस हुलिये के हकीकी आदमी इतने तेज़ नहीं चला करते, वो इतनी तेज़ चल ही नहीं सकते। मुफलसी और कसम परसी उनके पाँव की बेड़ियाँ बनी रहती हैं। मुझे मोहतात होना चाहिए था, लेकिन मैं एहतियात से लापरवाह हो गया था। मैं उस गली में दाखिल हो गया जो आगे जाकर दाएं और फिर बाएं को मुड़कर सायरा के घर तक पहुंचा देती थी। मैं उससे पहले भी ज्योतिषियों के बहरूप में उस गली में आया था, तो मुझ पर जज्बात का ऐसा गलबा हुआ था कि मेरे आंसू निकल आए थे। मैंने उन गलियों में खेल कूद कर जवान हुआ था, और मैं जब ज्योतिषी बनकर यहाँ आया था तो मुझे अपने बचपन के कहके और दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनाई देती। ये आलम ख्याल की और मेरे माजी की आवाज़ें थी, लेकिन इतनी हकीकी जैसे मैं वाकई ही ये आवाज़ें सुन रहा था। मगर अब जब मैं एक मुफलस किसान और नीम फाका कश इंसान के बहरूप में उस गली में दाखिल हुआ तो मैंने कुछ भी महसूस ना किया। ना बचपन की याद आई, ना माजी की तरफ गया। सिर्फ एक इश्तियाक था कि मैं सायरा के पास जा रहा हूँ। मैंने उस गली में 2 बूढ़ी औरतों और 3 बूढ़े आदमी देखे जिन्हें मैं बड़ी अच्छी तरह जानता था। एक आदमी मेरी उम्र का मेरे करीब से गुजर गया। ये मेरा हमजोली था। हम इकट्ठे स्कूल जाया करते और स्कूल से आकर इकट्ठे खेला करते थे। मेरा ये हमजोली गुर्बत की वजह से छठी जमात से आगे नहीं पढ़ सका था। मैंने उन सब को देखा, उनमें से किसी ने भी मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा, और मैं सायरा के दरवाजे पर जा रुका। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज़ बदल कर सदा लगाई कि एक भूखा सवाली चौधरियों के दरवाजे पर आया है। 1-2 मिनट बाद सायरा बाहर आई। मैं दरवाजे के सामने अकड़ू बैठ गया। मेरे बहरूप में सब्ज कपड़े का एक टुकड़ा भी था जो मैंने एक आंख पर बांधा हुआ था। जब सायरा दहलीज पर आई तो मैंने ऊपर देखा और उसने एक पैसा मेरी तरफ बढ़ाया। ना बीबी, मैंने मरियल सी आवाज़ में कहा, मुझे गरीब ने पैसों का क्या बनाना है, मैं तो भूख से मर रहा हूँ। मैं दर्द पर सदा लगाकर भीख मांगने वाला नहीं हूँ। तुम एक रोटी दे दोगी तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करके अपनी राह लग जाऊंगा। डेवड़ी में आ जाओ, सायरा ये कहकर अंदर चली गई। मैं डेवड़ी में फर्श पर जा बैठा और हाथ लंबा करके दरवाज़ा बंद कर दिया। ये लो, सायरा की आवाज़ पर मैंने देखा। सायरा ने मेरे आगे पीतल की एक थाली रखी, उसमें माश की दाल थी। प्लेट के करीब उसने छोटी सी चंगेर रखी थी जिसमें तनूर की 1.5 रोटी थी। ये दोपहर की बची हुई रोटी है, सायरा ने कहा, देख लो बहुत है। मैंने ऊपर देखा और मुझ पर दिक्कत तारी हो गई थी। मैं कुछ कहना चाहता था जो मैं कह ना सका। सायरा को हाथ से इशारा किया कि बैठ जाए और वो बैठ गई। तुम्हें देखकर भूख मिट गई है, मैंने आहिस्ता से जज्बाती आवाज़ में कहा। सायरा ने चौंक कर मुझे देखा। पहचाना नहीं सायरा, मैंने कहा और आंख से सब्ज कपड़े की टाकी हटा दी। सिकंदर, सायरा के मुंह से सरगोशी निकली। सिकंदर हो तुम? सायरा का सरापा मेरी आंखों के सामने झिलमिलाने लगा, जैसे साकन झील में किसी ने कंकड़ फेंक दिया हो। सिकंदर, मुझे सायरा की बुलंद और बेताब सरगोशी सुनाई दी। मेरे दोनों हाथ सायरा के हाथों में आ गए और आंसुओं की झिलमिलाती धुंधलाहट में मुझे सायरा का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसने मेरे हाथों को चूमा, फिर आंखों से लगाया
फिर वो उठ खड़ी हुई और मेरे बाजू खींचकर मुझे भी बिठा लिया। रोटी वहीं पड़ी रही और वो मुझे डेवड़ी के साथ वाले कमरे में ले गई। ये वो कमरा था जहां मैं अयूब से मिला था। सायरा पर जज्बात का ऐसा गलबा था कि वो मेरे गले लग गई और उसने बच्चों की तरह रोना और बिलबिलाना शुरू कर दिया। मेरी अपनी जब जज्बाती हालत उस जैसी हो रही थी, हम दोनों को एहसास हो गया कि सायरा की मां कमरे में आ गई है। मैं सायरा से अलग होने की कोशिश करने लगा, लेकिन सायरा मुझे छोड़ नहीं रही थी। कौन है ये सायरा? सायरा की मां ने कदरे गुस्सीली आवाज में पूछा। सिकंदर हूं खाला जान, मैंने सायरा की मां की तरफ मुड़कर कहा। सायरा मुझसे अलग हो गई और मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया। यही सिकंदर है अम्मी जान, सायरा ने अपनी मां से कहा। बैठ जाओ अम्मी और अल्लाह का मोर्चा देखो। पहले ये बताओ सिकंदर, सायरा की मां ने पूछा, लोग ये क्यों कहते हैं कि मेरे बेटे को तुमने कत्ल किया था? नहीं अम्मी, सायरा ने जरा ऊंची आवाज में कहा, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि अयूब भाई का कातिल सिकंदर नहीं। तुम्हें समझा कर थक गई हूं, लेकिन तुम अपनी बेटी की जुबान पर एतबार करने की बजाय लोगों की बातों को सच मानती हो। मैंने सायरा की मां को अयूब के कत्ल की एक झूठी कहानी सुना दी और सायरा ने मेरे झूठ को सच समझकर तायीद कर दी। अम्मी जान, सायरा ने अपनी मां से कहा, किसी को यह ना बता देना कि सिकंदर आया है या आया था, वजह तुम्हें मालूम है। मुझे तुम इतनी कम अकल समझती हो, सायरा की मां ने दुरुस्त लहजे में कहा। सायरा की मां के साथ जो बातें हुई उनका मैंने रद्द अमल देखा और उसने जो मुख्तसर सी 2-4 बातें की उससे मुझे अंदाजा हुआ जैसे गमों और दुखों ने उसकी दिमागी हालत कमजोर कर दी हो, और मुझे सायरा पर इतना रहम ना आया जितना उसकी मां पर आया। सिकंदर बेटा, सायरा की मां ने मिन्नत समाजत के लहजे में कहा, इसे कुछ समझाओ। मैं इसके फर्ज से सुरखरू होना चाहती हूँ, लेकिन ये कुछ समझती ही नहीं, सिर्फ तुम्हारा नाम लेती है। अगर तुम हमेशा के लिए आ गए हो तो इसका हाथ थाम लो, मैं तुम दोनों को इजाजत देती हूँ। मैं इसे समझाने के लिए आया हूँ खाला जान, मैंने कहा। मैं हमेशा के लिए नहीं आया, आप जानती हैं कि मैं उड़ता पंछी हूँ। सिकंदर बेटा, सायरा की मां ने जज्बाती से लहजे में कहा, तुम हो तो सिकंदर ही, लेकिन सिकंदर लगते नहीं। मुझे तो तुम्हारा वो चेहरा याद है जब तुम भोले भाले से लड़के थे और मैं हर रोज तुम्हें उस गली में से गुजरता देखा करती थी। उसके आंसू बह निकले और रिक्कत ने उसकी जुबान बंद कर दी। उसने मेरी अम्मी और मेरे अब्बू की बातें की, हमारे घर को याद किया और मेरी लड़कपटन के वक्त की बातें करती रही। सायरा ने उसे कहा कि वो खाने का बंदोबस्त करे। वो उठी और कमरे से निकल गई। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा सायरा, मैंने कहा। मैं तुम्हारे मुतल्लिक सब कुछ सुनकर आया हूँ। तजम्मुल और मुनव्वर का जो आदमी तुम्हारे पास आता है उसने मुझे तुम्हारी सारी बातें बताई हैं। मैं उन लोगों से बहुत दूर चला गया हूँ, भेस बदल कर उनसे मिलने आया था कि उनके पास आकर तुम्हारी जज्बाती हालत मालूम हुई तो मैं अपने आप को खतरे में डालकर तुम्हारे पास आ गया। अपने आप को संभालो सायरा, मैं तो जुर्म करके भागा भागा फिर रहा हूँ। तुम अपने आप को बेगुनाह सजा ना दो, मैं तुम्हें नहीं मिल सकूंगा। तुम मुझे नहीं मिल सकोगे तो मैं किसी और को नहीं मिल सकूंगी, सायरा ने पुरअज़म लहजे में कहा। मैं जानती हूं कि तुम मुझे क्या कहोगे। मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूं कि तुम्हारी पंदो नसीहत नहीं सुनूंगी। तुम आ जाओगे सिकंदर, तुम आ जाओगे। अगर तुमने कभी लाश को जिंदा होते देखा है तो मैं शायद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैंने कहा। हकीकत को देखो सायरा, अगर मेरे पास शादी करके तुम 3-4 महीनों बाद बेवा होना चाहती हो तो मौलवी को बुला लेते हैं, वो निकाह पढ़ा देगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं तुम्हें छुपा कर रखूंगी, सायरा ने कहा। किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि तुम यहाँ हो। सायरा की इस दलील से अंदाजा करें कि वो हकीकी जिंदगी से या हकायक से कितनी दूर चली गई थी। गुलशन बीबी को तुम जानते हो ना, सायरा ने कहा। वो भी कहती है कि अल्लाह के दरबार में कोई कमी नहीं, अल्लाह को याद करती रहो, तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अल्लाह को सिर्फ ये ना कहती रहना कि मुझे सिकंदर चाहिए, बल्कि ये कहना कि या खुदावन ताला मुझे आपकी खुशनुदी चाहिए। फिर वो कहती है कि आप अपने आप को और अपने ख्यालों को पाक रखना, फिर तुम्हें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो जाएगी और अल्लाह तबारक ताला तुम्हारी हर मुराद पूरी करेंगे। मेरी कोशिश ये तो नहीं थी कि गुलशन ने उसे जो बताया था मैं उसके खिलाफ बात करता। गुलशन ने उसे बिल्कुल सही बात कही थी। ये बिल्कुल वाज़ेह था
کہ मैं उसे नहीं मिल सकता था, लेकिन गुलशन ने उसे जिस रास्ते पर डाल दिया था वो बहुत खूबसूरत और पुरसकून रास्ता था। उसमें सायरा के लिए एक उम्मीद थी और रूहानी सकून। उसका दूसरा फ़ायदा ये था कि सायरा को एहसास और ख्याल ही नहीं रहा था कि वो जवान लड़की है और जवानी के कुछ मुतालबे भी होते हैं। मैंने पहले बताया है कि सायरा के ख़राब होने का अमकान ज़्यादा था। ये अमकान गुलशन आरा ने ख़त्म कर दिया था। सायरा खुद भी गलत रास्तों पर चलने वाली लड़की नहीं थी। गुलशन आरा ने उसकी नीयत को बिल्कुल ही धो डाला। मैंने उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि मैं उसे सिर्फ एक सूरत में मिल सकता हूँ कि सूरज सवा नेदे पर आ जाए और ज़मीन पर ऐसी नफसा नफसी पैदा हो जाए कि किसी को किसी का ख्याल ही ना रहे। लेकिन सायरा के होंठों पर जो मुस्कुराहट थी वो बदस्तूर कायम रही। फिर ये मुस्कुराहट ऐसी सूरत इख्तियार कर गई जैसे मेरे इस्तदलाल का मजाक उड़ा रही हो। वो मेरी हर बात को सुनी अनसुनी कर रही थी। फिर उसने ये अंदाज इख्तियार कर लिया कि मैं उसे जो बात भी कहता वो उंगली आसमान की तरफ करके मुस्कुरा देती। मैं हार गया। मैं ये तो जानता था कि ये लड़की सारी उम्र का कवारपन कबूल कर लेगी लेकिन ख़राब नहीं होगी। मुझे खतरा ये नज़र आ रहा था कि ज़हनी तौर पर वो अब नॉर्मल तो हो ही गई थी, उससे अगला मरहला पागलपन का था और उसने और 2-4 साल बाद पागल हो जाना था। फिर ये बताना मुश्किल था कि उसका अंजाम क्या होगा। मुझे जब अपनी शिकस्त का एहसास हुआ तो मुझे सायरा के वालिद का ख्याल आया। मैंने सायरा से पूछा कि अब्बा जी कहाँ है, और उसके जवाब में सायरा ने हाथों और सर का ऐसा इशारा किया जैसे उसे मालूम नहीं और उसे परवाह भी नहीं कि वो घर हैं या कहीं गए हुए हैं। इतने में सायरा की माँ कमरे में आई और मैंने उससे पूछा कि सायरा के अब्बा जान कहाँ है। क्या बताऊं बेटा, वो कहाँ है, सायरा की माँ ने जवाब दिया। उन्हें तो बेटे का गम ले डूबा है, ऊपर उस बेटी का दुख। वो अल्लाह का बंदा तो जैसे ज़मीन पर है ना आसमान पर। आज तीसरा दिन है वो घर से निकले हैं। किसी ने एक पहुंच वाले बुजुर्ग का पता दिया था, उनके पास गए हैं। घर होते हैं तो भी लेटे हुए छत की तरफ देखते रहते हैं। माँ इतना ही कह सकी और फिर उसके आंसू बहने लगे। सिकंदर, सायरा ने कहा, इन्हें कहो कि मुझे इस तरह परेशान ना करें। मैं इन्हें कहती हूँ कि अल्लाह के सामने कोई बुजुर्ग नहीं, लेकिन ये खानकाहों और मज़ारों पर माथे रगड़ते हैं और मालूम नहीं कहाँ कहाँ से तावीज़ लाकर और पानी में घोल घोल कर मुझे पिलाते रहते हैं। देखा सिकंदर बेटा, माँ ने कहा, ये पीरों फकीरों को नहीं मानती। मैं तो ये कहती हूँ और उसके मुंह पर कहती हूँ कि ये पीरों की बद्दुआएं हैं। हमारे असल पीर का कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए हैं। मेरा अयूब बेटा उनका मरीज था। मैंने अपने एक रिश्तेदार को उनके गांव भेजा तो ये खबर लाया कि साईं जी कहीं चले गए हैं और शायद वापस ना आए। तुमने भी शायद उनका नाम सुना होगा। वो साईं करामते वाले के नाम से मशहूर हैं। पहले तो मुझे ख्याल आया कि इस औरत को साईं करामते वाले की असलियत बता दूं, लेकिन मैं उस बुढ़िया को ये धचका नहीं लगाना चाहता था। मैं ये भी जानता था कि यह मानेगी ही नहीं कि साईं करामते वाला एक जुराइम पेशा आदमी था। रात हो गई थी। माँ बेटी ने मुझे खाना खिलाया। खासा पुरतकल्लफ खाना था। खाना खाकर मैं रुखसत होने लगा तो सायरा ने यह जिद शुरू कर दी कि मैं रात वहीं गुजारूं। खुदा का शुक्र है कि मेरे इनकार को वो मान गई और मैं वहां से चल पड़ा। हकीकत यह है कि मैंने अपने आप को उस घर से धकेल कर बाहर निकाला था। कदम आगे बढ़ते ही नहीं थे, लेकिन मुझे वहां से रुखसत होना ही था और मैं अपने शहर से निकल आया। सुबह का धुंधलका अभी छटा नहीं था जब मैं तजम्मुल और मुनव्वर के पास पहुंच गया। नाश्ता उनके साथ किया और सो गया। मैंने सारी रात पैदल सफ़र किया था। उन लोगों ने मुझे दोपहर के खाने के वक्त जगाया और मुझे वहां ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए था। अंग्रेज़ों की पुलिस ऐसी कम अकल तो नहीं थी कि उसे अभी तक शक होता कि मैं यहीं छुपा हुआ हूँगा, लेकिन मैं जब यहाँ रहा था तो मुझे यकीन सा हो गया था कि यहाँ पुलिस के मुखबर मौजूद हैं और वो जो कोई भी हैं वो इस जागीर के मज़ाराओं और नौकरों में से हैं। ये मालूम करना बहुत मुश्किल था कि वो कौन हैं। दोनों भाई मुझे 1-2 दिनों के लिए रोक रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि ना ही रुकूं तो बेहतर है। वहाँ से मैं बोझल दिल से चल पड़ा। मेरे ख्यालों में सिर्फ सायरा थी और वो मेरी खातर अपनी जवानी तबाह कर रही थी। वो एक दरख्शां उम्मीद पर जिंदा थी।
वो एक शराब के पीछे चली जा रही थी और उसे एहसास ही नहीं था कि वो धुंधली राह पर चल रही है और ये धुंध गहरी होती जाएगी, छटेगी नहीं। मैं इन्हीं सोचों में डूबा हुआ चलता गया और रात अपने ठिकाने पर पहुंच गया। सब गहरी नींद सोए हुए थे। मैं अपने कमरे में गया और चारपाई पर गिर पड़ा। नींद और थकन का गलबा ऐसा था कि भूख का एहसास ही ना रहा। सिर्फ इतना एहसास था कि रात गुजर चुकी है और ये अंधेर सहरी का है। मैं अगले रोज उस वक्त जागा जब सूरज बहुत आगे निकल गया था और कुछ देर बाद उसे डूब जाना था। मैं अपने साथियों में जा बैठा। वो बेताबी से मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने उन्हें अपने सफर की रूदाद सुनाई। तुम पत्थर हो, हमीदुल्लाह ने सायरा के मुतल्लक बातें सुनकर मुझे कहा और उसे साथ ले आते और अपने साथ रखते। इतनी खूबसूरत लड़की को गवा कर उसकी बातें करते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कुछ देर हंसी मजाक भी चला और फिर हम सब खाने पर बैठ गए। रमेश भी हमारे साथ खाना खाया करता था और उसने ये देखने की जरूरत कभी महसूस नहीं की थी कि ये गोश्त जो उसे खिलाया जा रहा है गाय का है या बकरे का। वो अपने मजहब से दस्तबरदार हो चुका था। लैला के लिए खाना कमरे में जाता था। उसी रात का जिक्र है। मैं अभी लेटा ही था कि लैला आ गई। कमरे में दिया जल रहा था। तुम्हें एक बात बताने आई हूँ, उसने मेरे पास बैठते हुए कहा। मैंने तुम्हें बताया था कि दीबा मेरे साथ बहुत प्यार करता है। मुझे उसका प्यार अच्छा लगता है क्योंकि उसके प्यार में मुझे बाप की शफकत की झलक नजर आती है। कल दोपहर का वाकया है कि मैं टहलते टहलते दीबा के कमरे के सामने से गुजरी तो उसने मुझे देख लिया और कमरे में बुला लिया। मैं उसके पास जा बैठी। पहले तो वह हर रोज की तरह मेरे सर पर और पीठ पर हाथ फेरता रहा, लेकिन कल उसने मुझे अपने साथ लगा लिया। मैं उसकी नीयत को समझती हूँ, इसलिए मैंने बुरा ना जाना। जहां तक दीबे का ताल्लुक था, मैंने भी उसकी इस हरकत को बुरा ना समझा और उसने लैला को अपने साथ लगा लिया था। दीबा तो वो आदमी था जिसने अपने पूरे ग्रोह को कह रखा था कि किसी औरत को अगवा नहीं करना, ना किसी औरत पर हाथ उठाना है। लेकिन लैला ने मुझे यह बात सुनाई कि वो इंसानी फितरत की बहुत बड़ी कमजोरी का किस्सा है। लैला, दीबा ने कहा कि मैंने बहुत सोचा है और मैं ये भी कहता हूँ कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जानी चाहिए, लेकिन जब मुझे यह ख्याल आता है कि तुम हमीदुल्लाह खान की बीवी बन जाओगी तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा तुम किसी और की मलकियत में चली गई हो। क्यों उस्ताद? लैला ने कुछ ना समझते हुए बच्चों किसी शौकी से पूछा। क्या तुम मेरी शादी पर खुश नहीं होगे? नहीं लैला, दीबे ने कहा, मुझे दुख होगा। दीबे ने लैला को अपने और करीब कर लिया और अपना एक गाल लैला के बालों पर रख दिया। लैला ने जरा सी भी मज़ाहमत ना की। अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं शादी नहीं करूंगी, लैला ने कहा। मैं शादी से नहीं रोक रहा लैला, दीबा ने कहा। तुम्हारी शादी जरूर होगी, लेकिन लैला, मैंने कहा कि तो तुम नाराज हो जाओगी। तुम्हें क्या हो गया है उस्ताद? लैला ने कहा। मैंने सुना है कि तुम हुक्म दिया करते हो और किसी के तुम सुनते ही नहीं। कहो ना, कहना क्या चाहते हो? मैं नाराज नहीं होंगी। अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारी शादी मेरे साथ होगी तो भी तुम नाराज नहीं होगी? दीबे ने पूछा। नाराज हो जाऊंगी तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगी? लैला ने कहा। हैरान जरूर होंगी। यहाँ तुम्हारा राज है, तुम्हारा हुक्म चलता है। मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ, यहाँ वही होता है जो तुम चाहते हो। हाँ लैला, दीबा ने कहा, यहाँ मेरा हुक्म चलता है, लेकिन मेरा हुक्म जिस्मों पर चलता है, दिलों पर नहीं। मुझे तुम्हारा जिस्म नहीं, दिल चाहिए। जिस्म तो मैं खरीद भी सकता हूँ, खरीदे भी हैं, लेकिन मुझे दाश्ता नहीं, बीवी चाहिए। ऐसी बीवी जिसके दिल में मेरी मोहब्बत हो। अगर तुम अपने दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर सको तो मेरी बीवी बन जाओ। अगर तुम दिली मोहब्बत ना दे सको तो मैं तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं करूँगा। लैला ने उसे हैरतज़दा नज़रों से देखा। उसे दीबा से ये तवक्का नहीं थी। मैं भी ये सुनकर हैरान हुआ, लेकिन इसलिए नहीं कि दीबा ने लैला के साथ शादी करने की ख्वाहिश का इज़हार किया था, बल्कि हैरत इस पर थी कि वो लैला से मोहब्बत की भीख मांग रहा था। मैं ये भी जानता था कि साथ जो छोटा सा गांव था, वहाँ की एक जवान औरत तीसरे चौथे रोज अमूमन शाम के बाद दीबा के पास आया करती थी और उसकी उम्र 30 साल से कुछ ज़्यादा थी और वो खूबसूरत औरत थी और वो दीबा की दाश्ता थी।
اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو تو میں کہوں گی کہ تمہاری عمر میری عمر سے دگنی ہے، لیلا نے دیبا سے کہا، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ میں تمہارے پیار میں اپنے باپ کی جھلک دیکھتی رہی ہوں، حالانکہ میرے باپ نے میرے ساتھ کبھی پیار نہیں کیا تھا۔ میں عورت کا نہیں، عورت کے پیار کا پیاسا ہوں، دیبا نے کہا۔ میں نے شادی کی تھی لیکن بیوی جھگڑالو نکلی۔ وہ خوبصورت تھی لیکن میں نے اس کے ماتھے پر ہمیشہ شکنیں دیکھی اور اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ نہ دیکھی۔